Parveen Solanki. Hello friends, this is Parveen Solanki from PL Shroff College. Friends, today I am going to discuss with you something about a very important subject which has been introduced in our syllabus of SYBCom, and that is business law. Friends, let us understand that what is the scope of this subject, how this subject is important for you, and how we are going to complete this subject. Uh, Friends, if we talk about our subject, that is business law, first of all we have to understand that what is the concept of business and what is the concept of law. My dear friends, as all of you are commerce student, so you are aware about the term business. Business refers to something which deals with buying and selling, right? Now when we talk about buying and selling or settlement of any transaction, we have to see to it that we have to follow certain norms, certain rules and regulations. And if there would not be rules and regulations to settle the transaction, then anybody would be doing the things as per the wish, right? And there will not be any uniformity. And so as to bring the uniformity in a particular area, we have to think of certain norms, certain rules and regulations, and for that purpose we have to go through certain principles, certain governing rules, and then it comes to the framing of rules and regulations. And these rules and regulations are nothing but the law of that particular segment or that particular area. नाउ आप सबको मालूम है कि हम जिस भी कल्चर में रहते हैं, जिस भी कम्युनिटी को हम बिलोंग करते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, राइट? एंड उस नॉर्म्स के हिसाब से हमें रहना पड़ता है. अगर हम उनके रूल्स के हिसाब से, उनके कस्टम के हिसाब से नहीं रहते, देन people don't accept us, right? Similarly, when a businessman wants to do the business, then the businessman has to follow the norms, rules and regulations of business, right? Now as far as the rules and regulations of business are concerned, businessmen must know few basic things, few basic laws, rules, regulations of conducting the business, right? Now friends, let us move to the next slide. Here on the top of the slide you will find a sentence that is a Latin word, ignorantia juris non execuset. It means ignorance is not an excuse that one can give, that I was not aware of this law, so don't means I have committed this mistake, so don't punish me. ऐसे नहीं होता कि हमें कोई चीज़ या किसी पर्टिकुलर रूल के बारे में पता नहीं था, इसलिए हमने कोई गलती की और हमें उसके बारे में पनिशमेंट नहीं मिलेगा. हम अगर हमें कोई लॉ नहीं भी मालूम है, फिर भी जो लॉ है, जो नियम है, अगर वो हमने फॉलो नहीं किया तो हमारे इग्नोरेंस के कारण हमने वो मिस्टेक कमिट की है, और हम उस मिस्टेक की वजह से उस मिस्टेक के लिए जो भी कुछ पनिशमेंट होगी उसके हकदार नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, राइट? सो इग्नोरेंस इज़ नॉट अ रीज़न, राइट? सो वी हैव टू थिंक ऑफ इट कि लॉ में जो भी कुछ नियम बना है बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, वो आपको फॉलो करना ही है. अगर आपने वो फॉलो नहीं किया तो जो कुछ उसके सर्कमस्टेंसेस होंगे, दैट यू हैव टू फेस, राइट? सो ignorantia juris non excused, right? Means ignorance is not an excuse for any type of commission of mistake, right? Now let us understand that this law concept, the concept of law, it has been basically classified into two parts, right? At national level and at international level. Now again friends, this we do not have in our syllabus international law. We have to deal with only our national laws, right? Now
uh, when we talk about the national laws, these national laws are further classified into civil laws and criminal law. Now again, we are not concerned with the criminal laws, right? Because this is not in our syllabus. Those who will purely go for the LLB and in the depth of this subject, they would be studying these criminal law, right? uh, as far as our SY BCom syllabus is concerned, we are not dealing with these criminal laws. Okay, जैसे murders वगैरह होते हैं, okay, उन सारे चीज़ों के लिए जो cases होते हैं उससे related ये criminal laws जो है वो frame किए हुए हैं, right? That is not the part of our syllabus. Now let us talk about the civil law. Now civil law is further classified into constitutional law, administrative law, property law, personal cases, business law and industrial law, right? Now these amongst these civil laws, we have to deal with the business law, right? And to some extent we would be touching to the industrial law, okay, but it is again not in depth. बिजनेस लॉ ये जो सब्जेक्ट है ये हम डेप्थ में देखने वाले हैं. सो आई होप फ्रेंड्स दैट यू हैव अंडरस्टूड बेसिकली the origin of this particular or the classification of this concept of law, right? Now I think once I would again repeat the meaning of concept of business law. Business law means ऐसे सारे लॉज जो एक बिजनेसमैन को बेसिकली पता होने चाहिए अपना बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, राइट? नाउ लेट अस मूव टू द next part of our slides. Now friends, when we talk about the business law, we have to get the introduction about the scope of this particular subject. Friends, this subject of business law is again having a very vast and in-depth study of very important laws. Specifically, the scope of this particular business law is covering the prominent in the Indian Contract Act 1872, and the next important act that we have to study is the Sale of Goods Act 1930, the Negotiable Instruments Act 1881. Okay, again it is including the another important subject, or we can say the act, that is Partnership Act, then Limited Liability Partnership Act. We have to study the Consumer Protection Act, right? So these all things are covered under the subject of business law. Now let us talk about the Indian Contract Act 1872. Now this act, before studying this act, we have to understand what is the meaning of contract. Now friends, when two parties decides or agrees upon something, that particular thing, that particular agreement, if it is enforceable by law, it is called as contract. For example, अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी किसी एक बात के लिए दोनों एग्री हो जाते हैं, मिस्टर ए कोई ऑफ़र देते हैं और मिस्टर बी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट? और इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, अगर वो लॉ उसको बाइंड करता है, अगर उसके अंदर लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है, अगर उसको लॉ एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, राइट? नाउ let us move to the next slide. Here we will see the definition of contract. As per section 2 subsection H of Contract Act, the Indian Contract Act 1872, an agreement which is enforceable by law is a contract, right? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो लोगों के बीच में कोई बात के लिए एग्रीमेंट होता है और वो एग्रीमेंट सिर्फ आपस में ही एग्री करके रखा नहीं गया है, उसको इन्फोर्सेबल किया गया है लॉ के अंडर, और वो क्या बन जाता है, कन्वर्ट किस में हो जाता है, लॉ में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, राइट? इसका मतलब हम मैथमेटिकली अगर इसका एक फॉर्मूला अगर बना लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस enforceability by law, right? So contract is equal to agreement plus enforceability by law. Okay, so
as this section you have to remember that as per section 2 subsection H of the Indian Contract Act 1872, an agreement enforceable by law is a contract. Right now here the term agreement you might have come across and आपके माइंड में आ जाएगा कि फिर एग्रीमेंट क्या चीज़ है. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय एग्रीमेंट. फ्रेंड्स, as per section 2 subsection E of the Indian Contract Act 1872, every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. इसका मतलब होता है कि हर एक प्रॉमिस एंड प्रोमिसेस का सेट या ग्रुप जो किसी न किसी पर्सन के लिए कुछ ना कुछ बदला देता है. बदला मतलब कंसिडरेशन में कुछ तो आपको किसी चीज़ के बदले में मिल रहा है, आइदर इन कैश फॉर्म और इन नॉन कैश फॉर्म. दोनों पार्टीज़ को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, इसे कहते हैं एग्रीमेंट. राइट, तो एग्रीमेंट सिर्फ एक प्रॉमिस भी हो सकता है. राइट, सो एग्रीमेंट का मतलब क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट. मतलब हर वो प्रॉमिस या प्रोमिसेस का ग्रुप जो दोनों भी पार्टीज़ के, दोनों पार्टीज़ जो होती है एग्रीमेंट की, उन दोनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर मिस्टर ए को कुछ मिल रहा है लेकिन मिस्टर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बी को कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम इसको एग्रीमेंट नहीं कह सकते. दोनों को भी कुछ ना कुछ तो कंसिडरेशन मिलना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन E एग्रीमेंट कहलाएगा. नाउ फ्रेंड्स, लेट अस रिकॉल व्हाट वाज द सेक्शन ऑफ डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन का सेक्शन था सेक्शन 2 सबसेक्शन H. राइट, एंड एग्रीमेंट का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन E. दीज सेक्शंस यू हैव टू रिमेंबर. राइट, एंड वेरी इजीली यू कैन रिमेंबर. आप बहुत आसानी से इसको याद रख सकोगे. ठीक है, थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा एंड देन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. राइट, इन योर लॉ सब्जेक्ट यू कैन नॉट राइट एनीथिंग विच मीन्स यू कैन नॉट ब्लफ इन दिस सब्जेक्ट. राइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस सब्जेक्ट में हम ब्लफिंग नहीं कर सकते. फेकम फाकी जो होती है ना, दिस एंड दैट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो these things you cannot mention in the subject of business law. You have to be very much clear, you have to be very precise. Right, it means आप सबको study करनी ही पड़ेगी. Right, आपको पढ़ाई करनी ही है. Okay, so I hope all of you are ready to study. So now let us move to the next slide. Let us move to the next part of our lecture, that is to understand what are the important characteristics or features or essentials of a valid contract or agreement. Contract एक valid contract होने के लिए या एक valid agreement होने के लिए कौन कौन से उसमें essential चीज़ें होनी चाहिए, that we have to see. Now see friends, यहाँ पर एक term नया आपको दिखाई दे रहा होगा, valid. Valid मतलब जो जिसको करना सही है. ओके, अगर वो चीज़, ये सारी चीज़ें अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होंगी, उस एग्रीमेंट के अंदर होंगी, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट सही कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी उसके अंदर होगी, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो ये सारे जो फीचर्स हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए, तभी जाके वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा. राइट, सो हम वन बाय वन वो सारे फीचर्स देखते हैं जो एक एग्रीमेंट को वैलिड होने के लिए होने चाहिए. राइट, पहला इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, इसेंशियल फीचर है, वो है लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. जो पार्टीज़ होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, जब कोई ट्रांजेक्शन सेटल करना है तो जो पार्टीज़ होती हैं उन्होंने लॉफुल ऑफर करना चाहिए एंड एक्सेप्टेंस देने वाले ने भी लॉफुल एक्सेप्टेंस देना चाहिए. राइट, ऐसे नहीं है कि दोनों पार्टीज़ जो है वो एक दूसरे को, जो ऑफ़र दी जा रही है वो भी स्पेसिफिक होनी चाहिए और एक्सेप्टेंस जो है वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए. राइट, सो ऑफ़र एज वेल एज एक्सेप्टेंस मस्ट बी लॉफुल. देन द नेक्स्ट थिंग इज़ एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. अगर कोई फैमिली है और फैमिली के अंदर अगर किसी दो लोगों ने, फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ ने, अगर हस्बैंड ने वाइफ को अगर प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुमको डायमंड का नेकलेस
खरीद कर देने वाला हूँ, राइट। और अगर 2 दिन के बाद मैं तुम्हें देने वाला हूँ, और अगर 2 दिन के बाद वाइफ को डायमंड का सेट नहीं दे पाया किसी कारण से, तो क्या वाइफ जाकर कोर्ट में केस कर देगी? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन करने का इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था, राइट। सो देर इज़ अ फेमस केस ऑल्सो, and with reference to that particular case, in detail we will be understanding this particular thing. But cases we are just going through the essential features, and right now I am not discussing about the cases, okay. But there is a famous case about this particular intention to create a legal relationship, wherein uh, you would be coming across the important case, and we will discuss in our actual classes, right. Now the next, right now you just understand that the intention to create legal relationship plays a significant role. Now the next essential feature is an agreement for lawful consideration. Now consideration का मतलब होता है something in written. जो भी पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उन दोनों को कुछ ना कुछ तो बदले में मिलना चाहिए, राइट। 2 पार्टीज में से एक को कुछ मिल रहा है और दूसरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो वो एग्रीमेंट जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो लॉफुल नहीं कहलाएगा, राइट। सो एन एग्रीमेंट फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन, और वो कंसिडरेशन भी कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। लॉ की नज़र में उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, राइट। सो एन एग्रीमेंट फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन। नेक्स्ट, an agreement for a lawful object. Now see friends, जो ऑब्जेक्ट है एग्रीमेंट में एंटर होने का या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का, वो भी कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं कि तुम सी का मर्डर कर डालो तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा। इज़ इट अ लॉफुल एग्रीमेंट? इज़ इट अ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट? अगर कल को ए ने बी का मर्डर कर दिया, ए ने सी का मर्डर कर दिया, और बी अगर उसे उसका 1 करोड़ रुपया नहीं देगा, तो क्या बी रिकवर करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है? नहीं जा सकता। वाई? बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल था क्या? नहीं था, राइट। तो एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कब माना जाएगा? जब वो लॉफुल ऑब्जेक्टिव रखता होगा तो ही, राइट। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एसेंशियल फीचर for becoming a valid contract or agreement, that is competent parties. Now friends, competency मतलब जो पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वो दोनों पार्टीज कैपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की। नाउ कौन कैपेबल होगा? ऐसा पर्सन जो एज ऑफ मेजॉरिटी का है, जिसकी जो माइनर नहीं है वी कैन से, या जो साउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड का नहीं है, पागल नहीं है, या उसे किसी भी देश के लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया है कि वो एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, ऐसे किसी ने किसी कंट्री ने डिक्लेयर नहीं किया होगा, तो वो कर सकता है, कॉम्पिटेंट कहला सकता है। अगेन वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहता है, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो ड्रंक नहीं होना चाहिए, वो नशे में नहीं होना चाहिए। वो नशे की हालत में अगर है तो जब नशा उतर जाएगा तो वो क्या कहेगा कि मैंने तो ऐसा कोई एग्रीमेंट किया ही नहीं, राइट। सो कॉम्पिटेंसी होना बहुत ज़रूरी है। जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम एंटर होना चाहते हैं, तो जो पार्टीज़ है कॉन्ट्रैक्ट की, यानी ए एंड बी सपोज एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो दोनों माइनर नहीं होने चाहिए, ड्रंक भी नहीं होने चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, किसी लॉ ने उनको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से डिस्क्वालीफाई नहीं किया होना चाहिए, राइट। या ऐसी भी कोई भी सिचुएशन के जिसके अंदर उनकी कॉम्पिटेंसी, कैपेसिटी टू एंटर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होनी चाहिए, राइट। सो दैट इज़ another important essential feature to become a valid contract. Then the next is a free consent of parties to the agreement. Now जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो भी कुछ डिसाइड हुआ है वो फ्री कंसेंट से होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी डरा धमका कर या आपको किसी भी तरह से फोर्स में लाकर आपसे कोई काम करवाने की कोशिश नहीं करा सकता, राइट। अगर सपोज़
किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोर्शियन है मतलब डराना धमकाना है, या अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कोई सपोज कोई बॉस है और वो अपने एम्प्लॉय से ज़बरदस्ती कोई काम करवाना चाहता है अपने बॉस होने का गलत फ़ायदा उठाकर, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हम इसे कहेंगे। और या फिर किसी तरह का फ्रॉड किया जा रहा है आपके साथ, और फ्रॉड करके अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, या गलती से कोई कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हो रहे हो, या फिर आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिस रिप्रेजेंट करके आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया गया है, तो इस तरह का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। मतलब ये जो फ्री कंसेंट है, वो कंसेंट मतलब टू एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। दोनों पार्टीज़ होती है जो कॉन्ट्रैक्ट की, वो एक पर्टिकुलर मैटर पे सेम सेंस में एग्री होनी चाहिए और दोनों को भी सेम चीज़ समझ में आनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है कि XYZ जो कार है वो आप मुझे, ए कह रहा है बी को कि XYZ जो कार है वो मैं आपकी ख़रीदना चाहता हूँ, लेकिन वाई ये समझता है कि वो PQR के बारे में बता रहा है। सपोज़ एक इंडेक्स फिंगर का दिखाकर, आपकी उंगली का इशारा करके दो कार सामने खड़ी है और आप अगर उंगली का इशारा करके ए बी को बता रहा है कि मुझे वो वाली कार जो है वो ख़रीदनी है, और बी को लगता है कोई और कार, और वो उसके लिए एग्री हो जाता है। अब बी को कोई और कार लग रही थी और ए को कोई और कार लग रही थी, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। ओके, अब क्या हो गया, कंसेंट फ्री नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, गलती हो रही है या मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, या फिर सपोज़ ए और बी आपस में जो ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, इसके अंदर कोई सी पर्सन है वो डरा धमका रहा है, यानी कोर्सियन हो रहा है। कोर्सियन मतलब डराना धमकाना। ओके, और इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए रेडी किया जा रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहला सकता, राइट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को फ्री कंसेंट का होने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें एब्सेंट होनी चाहिए, उसमें कोर्शियन नहीं होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए मतलब डराना धमकाना नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, देन फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, एंड मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। ये 5 एलिमेंट अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, राइट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को फ्री कंसेंट का होने के लिए क्या होना चाहिए, वो 5 एलिमेंट जो अभी हमने डिस्कस किए, कोर्शियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, ये क्या होने चाहिए, एब्सेंट होने चाहिए। अगर ये एब्सेंट होंगे तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। Then the next important essential feature is must not have, means a contract must not have been expressly declared to be void। एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली यानी बताया ही, एक्सप्रेस करके ही ऑलरेडी बता दिया होता है। बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि जो एक्सप्रेसली वॉइड है, गलत है, ऐसे दिखाए गए हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ऑलरेडी जिसको एक्सप्रेस कर दिया गया है कि वो वॉइड है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान ही नहीं सकते, क्योंकि वैलिड का अपोजिट क्या है, वॉइड है, राइट। जो वैलिड नहीं है वो क्या है, वॉइड है। तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो वाइड है? फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्स पर्सन है वो वाई पर्सन के साथ एग्रीमेंट करता है कि जेड मीन्स जेड को किसी पी पर्सन से शादी नहीं करने देना है, राइट। मतलब एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, या एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को कोई ट्रेड करने नहीं देना है। ए और बी मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई हम सी को बिजनेस नहीं करने देंगे, तो ये भी क्या है, किसी को ट्रेड करने से रोकने का एग्रीमेंट है, तो ये भी क्या है, इटसेल्फ इट इज़ अ वॉइड। कोई लॉयर है, कोई वकील है या कोई जज है, उसको लीगल प्रोसीडिंग करने से रोकने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, एग्रीमेंट बना दिया, तो वो क्या है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। सो एनी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड। अगर ऐसा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एक्सप्रेसली बता दिया गया है, और हम डिटेल में ये पूरा एक जो टॉपिक है दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट सेशंस, बट अभी इतना आप समझ लो कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या नहीं होना चाहिए, वो वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, राइट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
ऑब्जर्वेंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। नाउ फ्रेंड्स, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड बनाना चाहते हैं तो वो वैलिड कब होगा कि जब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर सपोज़ कोई राइटिंग, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी ये कंपलसरी है कि वो करने के बिना, फॉर एग्जांपल आप एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो क्या आप वो प्रॉपर्टी खरीदोगे, वो आपकी पूरी हो जाएगी? कल को कोई भी आके आपको बोल सकता है अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, राइट? तो जो भी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है, अगर एक पर्टिकुलर आपने एग्रीमेंट किया है और उसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ ही पूरी नहीं हुई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहला सकता, राइट? सो ऑब्जर्वेंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ प्लेज अ significant role. Then the next point is essential feature is free from vagueness and ambiguity. Now free from vagueness and ambiguity, वेगनेस एंड एम्बिजिटी मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब हम एंटर करना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स है, कंडीशंस है, वो कैसे होने चाहिए? फ्री फ्रॉम वेगनेस मतलब उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, कोई भी वेगनेस नहीं है, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है। जो भी कुछ आप बोल रहे हो, जो भी कुछ टर्म्स आप डिस्कस कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए, वो कैसे हैं? सर्टन है। सर्टन है मतलब स्पेसिफिक है, क्लियर है, उसमें किसी भी तरह का वेगनेस या कन्फ्यूजन नहीं है। ओके, तो आप सपोज़ कोई भी एग्रीमेंट करने जा रहे हो तो उसमें किसी भी तरह का अनसर्टेनिटी या वेगनेस या एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, वो क्लियर होने चाहिए। उसके जो भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्लियर होने चाहिए सो दैट आपको किसी भी तरह का इनकन्वीनियंस ना हो, राइट? सो इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड द नेक्स्ट important feature is possibility of performance of the contract. Possibility of performance of the contract मतलब जब कोई पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है या किसी चीज़ पे एग्री हो रहा है तो उस काम के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक्स पर्सन है वो वाई को प्रॉमिस करता है, एक्स पर्सन वाई को प्रॉमिस करता है, उसके साथ एग्रीमेंट करता है कि वो जेड जो मर चुका है उसको क्या कर देगा? जिंदा कर देगा, उसके अंदर जान डाल देगा। हाँ, तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं है, राइट? अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पर्सन है जो किसी मरे हुए इंसान के अंदर जान डाल देता है, राइट? तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कैसी है यहाँ पे? ज़ीरो, राइट? सो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, राइट? सो इन दिस वे फ्रेंड्स वी हैव सीन that what are the important features of a valid contract. Also we have seen the scope of business law, then we have seen the definition of contract which is given under section 2 subsection H of the Indian Contract Act 1872. Also we have discussed the agreements definition as per section 2 subsection E, right? So in this way I think you have understood the concept of business law, the scope of business law, okay, and classification of business law. And in this way we have completed our discussion on the essential features of the contract, right? In our next lectures surely we will be moving ahead the next part of this session, right? I hope it's clear to you. Thank you.